Hello students, today we are going to discuss lecture 2 of the chapter Human Resource which we were earlier discussing. पहले लेक्चर तक हमने लास्ट 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे जो कि पॉपुलेशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. There were 3 main factors we discussed in the previous class as we had discussed. First was birth rate, second was death rate and third one was migration, right? Now today we are going to discuss all these 3 factors in detail and what is the definition, what you have to write when it comes for examination point of view, what you are supposed to write in the definition. Okay, so we are going to discuss these 3 factors first in detail. हमने पहला फैक्टर पढ़ा जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट. ठीक है, बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइफ बर्थ per 1000 persons in a year, right? Now how can you define birth rate? Like how many people survive after birth, that is known as the birth rate. It is actually different from the number of birth because not all the people survive, right? So that is why it is very different from the number of births which is taking place, and hence the birth rate was 49.2% per thousand in the beginning of the 20th century. Now this has come down to 26.1% during the same period. Okay, हम क्या बोल सकते हैं कि बर्थ रेट डिक्लाइन पर आ गई. क्यों आ गई? Because of various factors responsible which have led to the decline in the birth rate. Okay, second is death rate. Death rate can be defined as number of death per 1000 persons in a year. It has declined from 42.6 per 1000 to 8.7 per 1000. Okay, जो डेथ रेट है दैट हैज फॉलन बिकॉज ये जो डेथ रेट है ये गिरी है क्योंकि हम बहुत सारे एपिडेमिक्स के ऊपर कंट्रोल रख पाए हैं. ठीक है, जैसे प्लेग हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया. And it is also one of the positive side or positive factor that has led to that now people are becoming more and more aware towards availing better and better health facilities, right? Now because people are availing more health facilities, this has led to the decline in the death rate. It can also be an indicator that there have been advancement in the medical technology in the last 3 decades. Okay, now the main cause of high rate of growth of Indian population is because हमारी population में ये जो birth और death rate का जो gap है, ये gap बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. Independence के बाद birth rate और death rate दोनों decline पर थी, पर death rate का जो decline है वो बहुत rapid speed पर हुआ है in comparison to the birth rate, right? Now the third component is migration. Migration का मतलब होता है movement of people from one place to another. This can either be in search of education, this can either be in search of employment opportunities. Also, people do not only move within the country, people can look for these opportunities outside the country. That is also known as migration. Okay, so there are 2 kinds of people. One is immigrants. Immigrants are those people who leave a country. Okay, immigrants are those people who are coming to your country for the same purpose. Okay, Sudan is an example. Like we have countries like United States of America and Australia that they have gained in numbers by in migration or immigration. Okay, Sudan is an example of a country that has experienced loss in population because people have moved out of the country, out migration or emigration. ठीक है, ये जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, ये जनरली हम उन कंट्रीज में ज़्यादा देख रहे हैं जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं. तो लोग का मूवमेंट जो है, पीपल का जो मूवमेंट है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज से मूव कहाँ पर कर रही है, मोर प्रॉस्परस, मोर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ मूव कर रही है. बिकॉज फॉर सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. और विद इन कंट्री भी लोगों का मूवमेंट हम इन्हीं पर्पस की वजह से देख सकते हैं. ऑल्सो व्हाट वी कैन सी, people are migrating from rural areas to urban areas in search of employment, education and health facility.
Okay, now you see also one of the factor which is pointing out towards medical facility is we have seen increase in life expectancy at birth. now what is life expectancy at birth? एक ऐसी एवरेज एज जो कि मिनिमम एक पर्सन एक्सपेक्टेड है कि वो इतने साल तो जिएगा ही सही, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ठीक है, उसको बोला जाता है. तो जो एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेंस हुआ करता था पहले लोगों का, वो कम था, मतलब एज वाइज कम था. 2001 के सेंसस के हिसाब से, 2001 के सेंसस के हिसाब से वो था 63 इयर्स. बट नाउ दिस एज हैज राइजन अप एंड नाउ दिस एज इज अप्रोक्सीमेटली 67 इयर्स के आसपास की ये है. हमारी पॉपुलेशन जो है, हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली चेंज एक्सपीरियंस कर रही है, और ये पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया की चेंज हो रही है ऐसा नहीं है. हम इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस कर सकते हैं. कुछ कंट्रीज जैसे कि केनिया, दे हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. They had both high birth rate and death rate, but now with improving healthcare facilities, death rate have fallen, but the birth rate still remains high. So इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में कई बार पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन होता है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है. कुछ कंट्रीज जैसे कि यूके, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो बिकॉज ऑफ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट. नाउ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर्स टू कि आपकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, आपकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी कॉम्पोजिशन में आएगा कि आपकी कंट्री में कितने लोग मेल और फीमेल हैं, कितने लोग किस एज ग्रुप में लाए करते हैं, कितने लोग किस तरह की ऑक्यूपेशंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब वो किस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड हैं और उनकी इनकम कंडीशंस क्या हैं. सबसे पहला हमारे पास आता है इंडिया का सेक्स रेशियो. कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में सबसे पहली चीज, सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन एन ईयर. ठीक है, इन पर्टिकुलर ईयर इंडिया का जो सेक्स रेशियो था 2011 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वो था 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. सेकेंड इज द एज कॉम्पोजिशन. जनरली हम अपनी पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप में डिफाइन करते हैं. हमारे पास एक एज ग्रुप आता है एजेड और एल्डरली का, जो कि है 59 ईयर्स एंड अबव, मतलब 60 ईयर्स एंड अबव. एक एज ग्रुप आता है आपके पास चिल्ड्रन का, और एक एज ग्रुप आपके पास आता है वर्किंग एज का. तो वर्किंग एज में वी हैव 15 to 59 ईयर्स. चिल्ड्रन मीन्स बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज. ओके. थर्ड इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी को रन करने के लिए हमें 3 सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है. 3 सेक्टर्स वर्क करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो आपका ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ये बताता है कि कितने लोग किस सेक्टर में एंगेज्ड हैं. प्राइमरी सेक्टर के हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरी. ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं. ये प्राइमरी इसीलिए हैं बिकॉज दे आर कैरिड ऑन विद द हेल्प ऑफ नेचर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें हम कोई नई चीज को क्रिएट कर रहे हैं रिसोर्सेज को यूज करके. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विसेज, दे आर कॉल्ड एज टर्शरी सेक्टर बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस सर्विसेज. ओके. अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में इन तीनों सेक्टर्स का इंटरप्ले होना बहुत जरूरी है. ऑल दीज 3 सेक्टर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर. आपकी पॉपुलेशन का फोर्थ कंपोनेंट है लिटरेसी. लिटरेसी बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री के लिए. इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट विद सर्टेन अंडरस्टैंडिंग एंड इज ऑफ 7 years ऑफ एज एंड अबव इज कॉल्ड एज अ लिटरेट. द टर्म लिटरेसी इज रिलेटेड टू स्कूलिंग. ठीक है, स्कूलिंग का मतलब है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल. इंडिया की जो लिटरेसी लेवल है दैट वाज अराउंड 74.04%. मेल्स में लिटरेसी रेट ज्यादा है 82.14%, फीमेल्स में है 65.46% इन आवर कंट्री. इंडिया के स्टेट्स की अगर हम बात करें तो केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है दैट इज 93.91% और मिजोरम में है 91.58%.
यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में हाईएस्ट लिटरेसी है 92.28% की, बिहार में लोएस्ट लिटरेसी रेट है दैट इज 63.82%। मेल लिटरेसी हाईएस्ट है लक्षद्वीप में और केरला में, फीमेल लिटरेसी हाईएस्ट है केरला में और मिजोरम में, लोएस्ट मेल लिटरेसी इज इन बिहार, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी इज इन राजस्थान। अब हम इस पॉपुलेशन को अगर पिरामिड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कैसे करते हैं, इसका बेस होता है एज ग्रुप, ठीक है। यहाँ हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब नीचे से अगर हम स्टार्ट करें तो नीचे वाला जो आपका एज ग्रुप है वो है चिल्ड्रन, ठीक है, जैसा कि आपको ये लाइंस दिख रही होंगी 15 to 19 ईयर्स। फिर हमारे पास आता है 55 to 59 ईयर्स और फिर उसके अबव। ये जो दो सेगमेंट हैं ये आपको आपकी पॉपुलेशन का मेल और फीमेल मतलब आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। अब अगर हम पिरामिड को देखें तो पिरामिड कैसा होना चाहिए, आइडियल पिरामिड, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर एट द बॉटम एंड दे रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ बर्थ, ठीक है, जितना ज्यादा वो ब्रॉड होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ बर्थ है। जो टॉप है वो अपन को एजेड पीपल का ग्राफ शो करता है अबव 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। अगर वो श्रिंक होता जा रहा है तो बर्थ रेट ज्यादा है और वो डेथ रेट जो है वो कम है, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डिपेंडेंट है अपॉन अदर्स। जो पॉपुलेशन पिरामिड है कंट्री का, जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट अगर दोनों बहुत हाई हैं तो क्या होगा, पॉपुलेशन पिरामिड नीचे से भी ब्रॉड होगा और वो ऊपर से भी मतलब बेस जो होगा वो उसका ब्रॉड होगा और धीरे 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 करके वो नैरो होता जाएगा टुवर्ड्स द टॉप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो लोग बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट हाई है, पर लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई व्हेन दे आर इन्फेंट या फिर रिलेटिवली फ्यू बिकम अडल्ट और वेरी फ्यू पीपल बिकम ओल्ड, ठीक है। ये जो सिचुएशन है ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, केनिया का। सेकंड है जहां पर ऐसी कंट्रीज हैं जहां डेथ रेट स्पेशली अमंग्स द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, तो वो जो पिरामिड है वो यंगर एज ग्रुप में ब्रॉड होगा बिकॉज मोर इन्फेंट्स आर सर्वाइविंग टू अडल्टहुड। ऐसी पॉपुलेशन जो है वो कंटेन करती है लार्जली कंटेन रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल जिनका स्ट्रॉन्ग और एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स है। ये इंडिया की सिचुएशन है। ऐसी कंट्रीज जैसे कि जापान है जहां पर बर्थ रेट लो है तो वहां पर पिरामिड ब्रॉड बहुत नैरो होगा अपने बेस से, पिरामिड नैरो एट द बेस। डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रिफ्लेक्ट टू रीच ओल्ड एज, यानी कि ओल्ड एज वाला जो पिरामिड है उसका हम जो वो देख सकते हैं ग्राफ वो ज्यादा ब्रॉड होगा। तो स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडाउड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। ऑब्वियसली इंडिया में हम फॉर्चुनेट इनफ है कि हमारा जो मिडिल वर्किंग एज ग्रुप वाला जो पिरामिड है वो बहुत ब्रॉड है, इसीलिए इंडिया को यंग इंडिया बोला जाता है बिकॉज मेनी पीपल टेंड टू सर्वाइव टिल अडल्टहुड। They must be educated enough, they should have skills, they should have opportunities so that they are now becoming more and more productive, right? The government of India ने मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। ये जो मिनिस्ट्री है 1985 में क्रिएट करी गई थी ताकि लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। एवरेज डेंसिटी अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की देखें तो वो है 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि 31 ईयर्स थी 1951 में, वो अब राइज हो गई 64 ईयर्स में और अब तो 67 ईयर्स के आसपास है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ये दोनों बहुत डिफरेंट वर्ड्स है। इमी का मतलब होता है इन, एमी का मतलब होता है आउट, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इमी का मतलब है इन और एमी का मतलब होता है आउट, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।